हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, ओके। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब से बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर शुरू करना है आज। तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं डायोड का ही, देखिए। तीन रेजिस्टर्स हैं और कुछ डायोड्स कनेक्टेड हैं इस तरीके से। डायोड्स और आइडियल। तो करंट बाय द बैटरी क्या होगा? इफ डायोड्स आर आइडियल, व्हाट विल बी द करंट गिवन बाय द बैटरी? जिसका हो जाए बच्चों वो एक थम्स अप दीजिएगा। हो गया क्या? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? गिव मी अ थम्स अप। It's very easy. There are two diodes which are ideal. You just have to make an equivalent circuit diagram. See the resistors. Apar, what is the answer you got? so V by 2R. So V by 2R. Okay. ये V है, this is R, R and R. See, this one is forward biased and this is reverse bias. So the current can move like this. In the forward bias, it will go from this path, then through the resistor, then through the resistor. This is not used and this diode also does not allow the current to pass. So the path is like this. How many resistors are there? 2R. I is equal to V upon 2R. Over. Easy है बहुत ज़्यादा. ठीक है, how many of you got it? Raise hand fast. सर ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ?
अरे शॉर्ट सर्किट हाँ, तो ये नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, एक और करते हैं, देखो जल्दी से। very rapid answer I want. ठीक है, the voltage of the battery is 20 volt. This is a 6 ohm resistor. This is a 12 ohm resistor. This is a 3 ohm resistor. Current by the battery. If the diodes are ideal. ठीक है, very easy question. I want the answer very fast. the 5 ampere. The 5 Okay. ampere. Whoever gets the answer, give me a tick mark. जिसको भी आंसर मिल जाता है जल्दी से टिक मार्क लगाओ। कार्तिकेय, हर्षिता, गणेश, अन्वित, अवनी, अक्षत, श्रद्धा, विनायक। See, this is the positive terminal, this is the negative terminal. Positive, negative, positive, negative. P type, N type, P type, N type. So this is a reverse. This will not allow the current. This is forward. This will allow the current. So the equivalent circuit diagram becomes two resistors in parallel and the battery 6 and 12 ohms, 20 volt. Resistor equivalent will be product upon sum 6 into 12 upon 18. ठीक है, it comes out to be 4 ohm. So I will be V by R 20 upon 4 यानी 5 ampere. ठीक है, must have understood everybody. Avani, did you understand? Anvit, Ganesh, Ashita. Okay, we'll move forward. Let us talk about a new device today. This is called transistor. ठीक है, this is not in the course of board. It was removed last year. So this will be important for your competitive exams. Okay, what is a transistor? What does
the name of the transistor suggests. Transistor, trans and stir, है ना? Transfer resistor. It has two words combined to make its name, transistor. Why is it called transistor? I'll tell you later. Okay, I'll explain the name, but let me tell you what it is. It is a three-terminal इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक है इट हैज टू पीएन जंक्शंस इट हैज टू पीएन junctions actually one type of semiconductor is sandwiched between two layers of other type of semiconductor. Now what does the name suggest? Actually the name transfer register comes from its function. It transfers the current ठीक है इसका नाम ऐसा क्यों है ट्रांजिस्टर because it transfers the current from one resistor to another. In general, it transfers the current from low resistor circuit to high resistor circuit. High resistor circuit. Okay. It transfers the current from one circuit to another circuit. So transistor comes, है ना low resistor circuit to high resistor circuit. That is why the name transistor, transfer resistor. ठीक है? There are three terminals. I told you already. Three terminals. What are they? Emitter, base, collector. Emitter, base, collector. There are of two types. Transistors are of two types. What are they? एक होता है PNP transistor. As the name suggests, there is a P layer, then the N layer, and then again a P layer. That means N type is sandwiched between two P type semiconductors. The other type of the transistor is NPN transistor. Similarly, in this type of transistor, P type of semiconductor is sandwiched between two N type semiconductors. I will draw and explain like this P, then N, then P. And in the other one, there is a N type semiconductor, then P, then N. Okay, so they are of two types. Now, one terminal is connected to each of the semiconductor like this, like this, like this. So that is why this has become a three-terminal electronic device. Let us understand what is the meaning of, what is the purpose of these three terminals and how does this transistor work? Take a screenshot fast. I'll count to 5. जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 तक गिन रहा हूँ 1 2
3, 4, 4.5, quarter to 5, 5. ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, द कंस्ट्रक्शन एंड द सिंबल। There is a medium thickness layer, then a very thin layer, and then a very thick layer of semiconductor. Suppose it is a PNP type of semiconductor, then the first one is P, second is N, and then P type semiconductor. The medium thickness is actually called emitter, short for E. ठीक है? Then this is base, short is B, and the last one is collector, C. The first one is emitter, then base, and then collector. As the name suggests, as the names suggest, the purpose of emitter is to emit the charge carriers. Purpose of emitter is to emit the charge carriers. It emits the charge carriers towards the base. And base, being the thinnest of all, does not capture all the charge carriers. What happens is most of the charge carriers are reaching the collector. ठीक है? So the collector actually collects the charge carriers sent by the emitter. What does emitter do? Suppose emitter is throwing here, because it is a PNP transistor, the charge carriers in P type will be holes. So it will throw holes from this side. Some of the holes will be captured by the base, and most of them will reach collector and collected by the collector and will come out from the collector. In this way, it works. Let me explain in a little more detail. Emitter, medium thickness, heavily doped. Heavily doped मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा डोपिंग होती है. Heavily doped, doping is very high. ठीक है. एमिटर में डोपिंग जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है. साइज जो होता है वो मीडियम थिकनेस होता है, मतलब बेस से ज्यादा होता है और कलेक्टर से कम होता है. एंड बेसिक फंक्शन इज टू emit charge carriers towards base and collector. ठीक है. अब बात करता हूँ भाई बेस क्या चीज है. तो बेस इज थिनेस्ट, पहली बात है ना, एंड lightly doped. Its doping is very low. It is used to separate. It is used to separate emitter and collector. ठीक है, सिंपल काम है. और
क्या करता है, ये बायसिंग में हेल्प करता है, एंड हेल्प्स इन बायसिंग। जो दो पीएन जंक्शंस बन रहे हैं उनकी बायसिंग में ये हेल्प करता है। और लास्ट वन है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल। थिकेस्ट ऑफ ऑल। इट हैज मीडियम डोपिंग, मतलब डोपिंग इज ऑफ medium quantity, medium doping is there, medium doped, and its basic function is to collect the charge carriers emitted by the emitter. Function क्या है इसका? Function is to collect charge carriers coming from emitter। ठीक है भाई। Take a screenshot till now। Give me a thumbs up। Is everybody comfortable till now? Now the circuit symbol. Suppose you have an NPN transistor, NPN transistor, emitter, base, collector, right? What you have to do is make a circle, then make a chair, make a circle, make a chair, then draw three terminals. Okay, it's very easy. Make a chair, the legs of the chair will form E and C, and the middle one will make base, first of all. The next thing is there is an arrow on the emitter. The next thing is there is an arrow on the emitter. ठीक है, from P to N side. So like this here, base is P type and emitter is N type. So there will be an arrow from base to emitter. Suppose you have a PNP type of semiconducting transistor, E, B, and C. This is PNP type. The process is same. Make a circle, make a chair, extend the legs and the seat. Take one of them as emitter, take one of them as collector.
and the middle one becomes the base. ठीक है, सीधा काम है. नाउ फ्रॉम P टू N साइड है ना, एमिटर के पास एक एरो बनाना है फ्रॉम P to N side. So emitter in this one is positive, अरे P type, and base is N type. So the arrow will be from this end to this end, from emitter to base. And the circuit symbols are complete. This is for NPN. This is for PNP. Okay, it's very easy. I'll move forward, take a screenshot. जब भी आपको एरो बनानी होगी तो जो P है उसकी तरफ से N साइड की तरफ एरो बनाएंगे, लेकिन एमिटर की तरफ एरो बनेगी. एमिटर वाली डंडी में एरो बनेगी. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. तो देखो, there are three types of transistor circuits. There are three types of transistor circuits. Transistor circuits. उनके क्या क्या नाम है देखो, कॉमन एमिटर, दूसरा होता है कॉमन बेस, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर. तो हमारे कोर्स में ये होता है, इन कोर्स. और इसको हम स्टडी करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. और इसको नहीं पढ़ते हैं अच्छे डिटेल में. अब ये कॉमन एमिटर सर्किट, कॉमन बेस सर्किट, कॉमन कलेक्टर सर्किट, ये है क्या वो समझाता हूँ. देखिएगा, ये प्रोसेसेस होते हैं बायसिंग करने के. जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ एक कॉमन एमिटर सर्किट को, तो इसमें एमिटर जो है वो कॉमन माना जाता है. पहले एक बार ड्रॉ करता हूँ सर्किट, देखो. चेयर बनाई, इसको एमिटर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, this one is collector. So now, being common, emitter is connected to both the collector and base both. Being common, the emitter is connected to both the base and the collector. That is why this type of circuit is called common emitter circuit. ठीक है. अब वैसे अगर मैं कॉमन बेस की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं, बेस को कॉमन निकाल देते हैं. अच्छा, एक बात यह है कि इसमें
बायसिंग करने के लिए यहाँ पे बैटरीज लगा सकते हैं, रेजिस्टर्स लगे होते हैं। वो सब नेक्स्ट बातें हैं, वो अलग से बात करते हैं। फिलहाल सिर्फ नाम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या हो गया। ठीक है, दो लूप्स बन गए। ये सर्किट वन है, इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। जो लेफ्ट में है वो प्राइमरी सर्किट कहलाता है, और जो राइट में एक लूप बना है कलेक्टर और एमिटर को कनेक्ट करने वाला, उसको क्या करते हैं, कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। ये वाला जो है बेटा क्या है, प्राइमरी सर्किट हो गया। और इधर वाला सर्किट जो है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी। सॉरी। अब कॉमन बेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर से वही वाली बात है कि चेयर बनाना है। बेस को नीचे रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेयर थोड़ी सी उल्टी बना लेता हूँ, उससे डरिएगा मत आप लोग। इससे मैं बेस को एक साइड से निकाल सकूं। तो चेयर को उल्टी बनाया, कलेक्टर और एमिटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इधर एमिटर रख लो, इधर कलेक्टर रख लो, और नीचे की तरफ क्या रख लिया, बेस। क्योंकि इस सर्किट का नाम कॉमन बेस है, कॉमन बेस सर्किट, तो इसमें बेस को कॉमन रखते हुए उसको कनेक्ट कर दिया हमने, किससे, एमिटर से और कलेक्टर से। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ बैटरीज लगा देते हैं, कुछ रजिस्टर लगा देते हैं लेफ्ट सर्किट में, कुछ रजिस्टर और कुछ बैटरी लगा देते हैं राइट सर्किट में। इसको लेफ्ट वाले को प्राइमरी सर्किट बोला जाता है और राइट वाले को सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आप लोगों को समझ में आया क्या भाई, कि कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर का नाम क्या है, क्यों है। एक बार मुझे टिक मार्क दीजिए जल्दी से, जिनको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार वर्किंग समझाता हूँ मैं ट्रांजिस्टर की। हाउ डज अ ट्रांजिस्टर वर्क। गिव मी अ टिक मार्क फास्ट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग। वर्किंग में भी जैसे मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कॉमन बेस पढ़ा देता हूँ, और डिटेल में हम लोग कॉमन एमिटर पढ़ लेंगे, बिकॉज इट इज इन द कोर्स। तो कॉमन बेस सर्किट को हम फॉर अंडरस्टैंडिंग वी विल यूज कॉमन बेस सर्किट। ट्रांजिस्टर कौन सा ले लेते हैं, एन पी एन ले लेते हैं। मतलब एमिटर विल बी एन, base will be P, and the collector will be N again. ठीक है, बायसिंग को अलग से सिखाऊंगा मैं। फिलहाल मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, आई एम सेइंग इट डायरेक्टली, कि जनरली जो प्राइमरी सर्किट होता है, जो इनपुट सर्किट है, जिसको प्राइमरी सर्किट बोल रहे हैं, वो एक्चुअली इनपुट सर्किट होता है। और जो सेकेंडरी सर्किट है वो कौन सा सर्किट होता है, आउटपुट सर्किट होता है। तो प्राइमरी सर्किट इज एक्चुअली kept forward biased, and
द सेकेंडरी सर्किट इज केप्ट रिवर्स्ड बायस्ड इन जनरल, है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फॉर जनरल वर्किंग हम इसी तरीके से लेंगे। ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाया है, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। ये जो है, अगर एन पी एन लिया है तो ये एन पी एन हो गया बच्चों। कॉमन बेस सर्किट ले रहे हैं, अभी ड्रॉ मत कीजिएगा आप लोग। तो बेस को कॉमन वायर निकाल दिया। एन एन टाइप है तो एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ठीक है, और एक रेजिस्टर लगा दिया इधर, सपोज करो R1। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्राइमरी सर्किट एंड इट इज आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड। देखो, positive terminal of the battery is connected to p type semiconductor and negative terminal is connected to n type semiconductor। वैसे ही इधर वाले को रिवर्स रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बड़ी बैटरी लगाता हूँ, एक रेजिस्टर लगाता हूँ, आउटपुट रेजिस्टर, इसको R2 बोल देते हैं। और ठीक है, ये जो है ये कलेक्टर को वोल्टेज देगा, कलेक्टर एमिटर को, और लेफ्ट वाला जो है वो क्या देगा, एमिटर और बेस को। तो ये VBEP बोला जा सकता है और ये VCEP बोला जा सकता है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एमिटर यहाँ पे वोल्टेज है, इसीलिए C का वोल्टेज है विथ रेस्पेक्ट टू एमिटर, तो VCE नाम पड़ा है। VBE क्यों पड़ा है, बेस का, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, गलत लिख दिया, ना लिखने की वजह से। एक सेकेंड, पहले नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया बेटा एमिटर, दिस इज बेस and this is collector. So the common thing is base. So this is VEB and this is VCB। ठीक है, और भी तरीके हैं नेम करने के, उनको हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखो एन साइड में एमिटर है, एन टाइप का है एमिटर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ऐसे फेंकना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को ई लिखकर भी शो करते हैं और डॉट बना के भी शो करते हैं, मैं ई लिखकर शो कर रहा हूँ। तो करंट, ठीक है, इस तरह से एमिटर ने क्या किया, होल्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ फेंका, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे कन्वर्ट हो गए और बाहर आ गए। ठीक है, बेस में अटक गए एंड रेस्ट ऑफ देम रीच्ड कलेक्टर एंड मूव टू द टर्मिनल। तो emitter emitted them, base collected a few and most of them was collected by the collector। We know that the actual current, जो ट्रेडिशनल करंट हम लेते हैं, that is opposite to the direction of electrons। तो अब मैं करंट का डायरेक्शन दिखाता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें फंस गए होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए होंगे बेस में, वो बाहर निकले होंगे बेस टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन्स बेस टर्मिनल से बाहर निकले, इसलिए करंट बेस टर्मिनल के अंदर आया एक, इसका नाम मैं IB रख देता हूँ। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉन्स, द लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस्ड द बेस लेयर, क्रॉस्ड द बेस लेयर एंड रीच्ड द कलेक्टर। तो करंट
किधर आएगा? अंदर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो करंट अंदर आएगा। इस करंट का नाम मैं आईसी दे देता हूँ। ठीक है। और बचा कौन? अब ये दो करंट आए हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों करंट आए कहाँ से होंगे? तो इधर से आए होंगे। करंट इधर से एंटर हुआ है, मतलब करंट आई ई इधर से बाहर आया होगा। क्लियरली इस जंक्शन पे ये जो डॉट है यहाँ पे जंक्शन रूल लगाओ। जंक्शन रूल लगाओ। ठीक है, लिख तो दिया। इस पॉइंट को अगर मैं सपोज करो ए बोल देता हूँ, तो बाई जंक्शन रूल एट ए, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। और क्योंकि बेस इज वेरी थिन, आई बी करंट जो होता है वेरी वेरी लेस देन आई सी होता है। मतलब मेनली जो है वो करंट 95 से 99% तक जो करंट होता है एमिटर से भेजा हुआ, वो कलेक्टर के पास ही पहुंचता है। सिर्फ 1 to 5% बेस से निकल पाता है। 1 से 5% ही किससे निकल पाता है? बेस से निकल पाता है। ठीक है। एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप आपको याद ही होगा। एन के अंदर क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए एमिटर ने इलेक्ट्रॉन्स फेंके हैं। पी टाइप में क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिल गए और कुछ करंट बाहर आया, और बाकी इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर ने कनेक्ट किया। ठीक है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि IB is approximately 0.05 times of IE। तो बचेगा क्या? IC जो कलेक्टर का करंट है, दैट इज 0.95 ऑफ IE, है ना। कलेक्टर का करंट और बेस का करंट दोनों ही क्या होते हैं? थोड़े थोड़े कम होते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। फॉरवर्ड बायस करने की वजह से ये वाला पार्ट फॉरवर्ड बायस है, ये वाला बा, जो सर्किट है वो रिवर्स बायस्ड है। लेफ्ट वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, राइट वाला रिवर्स बायस्ड है। द प्राइमरी सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड and the secondary circuit is reverse biased. What happens is, in the transistor, the emitter emits whatever charge carriers it has. If it is N type, it will emit electrons. If it is P type, it will emit holes towards the base. Okay, because the charge carriers are moving very fast and the base is very thin, very small current comes out. Very small number of charge carriers are collected in the base, and most of them reach the collector forcefully। ठीक है। इवन दो जो बेस है, अरे सॉरी, जो कलेक्टर है वो वाला सर्किट रिवर्स बायस है, उसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने एमिटर से हाई स्पीड में फेंक कर, बाई एमिटिंग द चार्ज कैरियर्स एट वेरी हाई स्पीड, द करंट also flows through the collector. Generally it should not flow, but we have forcefully thrown the charge carriers from the emitter, so the collector has no choice but to collect the charge carriers। ठीक है। In this way
We have actually transferred the current from one resistor circuit to another circuit, है ना? R1 जो है उसको लो रखते हैं. R1 is kept small and R2 is large. That is why it is called transistor. Transfer of current from small resistor Sir, to large screen is not resistor. clear. Okay. वा, वापस आ गई क्या बच्चों स्क्रीन? Yes, sir. चलो भाई वापस से बात करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एवरीबॉडी. वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की बात चल रही है. टेक अ स्क्रीनशॉट. तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड स्लाइटली कैन गिव मी अ थम्स अप. द मेकिंग ऑफ द सर्किट, द process of work. If you have slightly understood, not completely, even slightly also, then give me a thumbs up. ठीक है. Take a screenshot. I will count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. See, तो मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ एक एक करके. इन above, in above ट्रांजिस्टर. कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? ट्रांजिस्टर कौन सा है? एन पी एन टाइप का है. कॉमन बेस circuit is used. N type emitter. सबसे पहले देखो ऐसे लिखते हैं. The emitter base junction is kept forward biased. ठीक है, फॉरवर्ड बायस रखा गया है. और कलेक्टर बेस जंक्शन is kept reverse bias. नेक्स्ट बात क्या है? द एमिटर जो कि कैसा है? एन टाइप का है. emits electrons. इट्स मेजर चार्ज कैरियर है ना. इसके पास मेनली कौन सा चार्ज कैरियर है? क्योंकि ये एन टाइप का है तो इसके पास कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है. अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, इफ इट हैड बीन पीएनपी ट्रांजिस्टर, it would emit holes. But since it is NPN transistor, it has majority charge carriers as electrons. Its majority charge carriers. ठीक है. emits electrons towards base. Next point क्या है? Since base is very thin, very thin, very few charge carriers, very few electrons are captured
to form base current IB। ठीक है बच्चों, बहुत ही स्मॉल बेस करंट फॉर्म बेस करंट होता है विच इज वेरी स्मॉल। बोल भी चुका हूँ कि एमिटर के करंट के कंपैरिजन में वो 5% से 1% तक हो सकता है, काफी कम रहता है। फिर नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स reach the collector and are captured by it and are captured by it to form collector current IC। ठीक है भाई, तो इस कारण से बेस करंट थोड़ा स्मॉल होता है एंड द कलेक्टर करंट इज अ लिटिल हाई। ठीक है, सिंस current was transferred from one side to other, ठीक है, नेम इज जस्टिफाइड। ट्रांजिस्टर जो नाम है वो जस्टिफाइड है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बात करी है हमने। अभी इसमें वैल्यूज कैसे चेंज होती है, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम उनकी जो बायसिंग है उसको चेंज कर देंगे, तो दोनों को फॉरवर्ड बना देंगे, दोनों को रिवर्स बना देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में बात करना पड़ेगा। फिलहाल अभी बेसिक इतना समझ लीजिए कि कैसे एक सर्किट में काम होता है। एक तरफ की बायसिंग की वजह से करंट चल तो देता है, दूसरी साइड नहीं आउट होता। देखो उधर का रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा है बेटा, एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगा देते हैं, दूसरा उधर रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस हम जानते हैं बहुत ज्यादा लार्ज होता है। तो जो इधर का सेकेंडरी सर्किट है बेटा, जो पहले से रिवर्स बायस करके रखा है, उसका रेजिस्टेंस तो और लार्ज है, लेकिन फिर भी उसमें करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, और उस करंट को कैप्चर करने के लिए इधर हमने एक बड़ी बैटरी लगा दी, जिससे करंट को कोई दिक्कत ना हो आने में। ठीक है, कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, बाकी तो फिर उसके बाद कलेक्टर से लेने का काम बैटरी ने कर दिया। रिपीट कर रहा हूँ भाई, यहाँ देखो, कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, बाहर ना निकलने का मन हो उनका, तो वो काम कौन कर रहा है, बैटरी कर दे रही है। बैटरी बड़ी लगाई है हमने, उधर की बायसिंग से थोड़ी ज्यादा बड़ी बायसिंग लग रही है, इधर 5 वोल्ट लगाया तो इधर 20 वोल्ट लगा दिया। तो क्या है, जो चार्ज करिए उसको देख, इधर के पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स आए थे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने खींच लिया। अगर इलेक्ट्रॉन्स को इसने खींचा है तो करंट किधर भेजा, इधर भेजा। रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे आके बैटरी में ऐसे एंटर हुए, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। आई एग्जैक्टली सेम वर्किंग होती, बस सारे डायरेक्शन उल्टे हो जाते। अगर ये ट्रांजिस्टर कौन सा होता, पी एन पी टाइप का होता, वर्किंग एग्जैक्टली सेम होती, एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वुड हैव बीन रिवर्स्ड। इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स आ गए होते,
ऊपर हमने पी एन पी लिखा होता, एमिटर का करंट जो बाहर आ रहा है वो अंदर जा रहा होता, वैलिडिटी लगानी पड़ती, क्योंकि पी पी बन जाता तो पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड से चिपकाना पड़ता। ठीक है, तो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया, इसको एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को एक बार, और फिर उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसका कि स्क्रीनशॉट आप लोग दे दीजिए, एक बार ले लीजिए अपने पास। ठीक है, आई होप कि कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को लगा होगा। यहाँ पे एक बार हैंड रेस कर दो, यहाँ तक कंफर्म कर रहे हो तो सब लोग। अब इस सर्किट, चलो भाई करंट फ्लो करवा लिया आपने सर, इधर से करंट को उधर भेज दिया, उससे फायदा क्या हुआ ये तो बताओ। तो ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्या फायदा होता है कि एक तरफ से करंट दूसरे तरफ एंटर हो जाए। व्हाट इज द एडवांटेज इफ करंट फ्रॉम वन साइड एंटर्स द अदर साइड। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।